वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर मैं काफी कुछ इंटरेस्टिंग बात करने वाली हूं और खासकर छोटे बच्चों की जो फेवरेट आइकॉनिक यूट्यूबर है, जो हर एक बच्चा उसे आइकन समझता है, उसके बारे में भी मैं थोड़ा कुछ टॉपिक निकालूंगी। तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं द मोस्ट फेमस एंड आइकन सारे बच्चों के लिए, है ना। दुनिया में जितने भी बच्चे हैं वो उनके लिए एक आइकन है, मिस रेचल, जिसकी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स है। मतलब शी इज एन एंटरप्रेन्योर, शी इज एन एजुकेटर, शी मेक्स वीडियोस, नर्सरी राइम्स और स्पीच और थेरेपी, जितने भी वो, मतलब शी इज टॉप नंबर 1 बच्चों की, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट। हर गली गली के बच्चों को पूछो ना मिस रेचल, वो जानेंगे उसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, शेखा इब्राहिम हियर। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत हैं। तो यहाँ पे मैं मिस रेचल की बात करने जा रही हूँ। इन शॉर्ट वो यहाँ पे, अच्छा मैं कुछ बोलने से पहले आप ये वीडियो देखो। You clearly love kids. Is that why you decided to speak out about what's happening in Gaza, specifically with children? I think it should be controversial to not say anything. Did you also, like millions of other Americans, just seeing these horrific, tragic videos? The idea that caring for a group of children in an emergency situation means you don't care about other children is false. Are Palestinian children less human than other children? Should we care less about them? I don't quite get where the controversy is coming from. It's sad that people try to make it controversial when you speak out for children that are facing immeasurable suffering. I'm sure you have a lot of good people in your lives who are saying to you, just be quiet. It's not worth it. What do you say to them? Our compassion doesn't have boundaries or borders. We just love kids. Why do you feel this urge to speak out for Sudanese kids and Haitian kids, and right now obviously the kids who are suffering most in the world, the Gazan kids? Silence wasn't a choice for me. Isra, her mom, grabs her phone and has her little boys on FaceTime. And her boys are adorable. I think they're around age 7 and 9. And they're in Gaza. And here I am, like, thinking, like, trying to be sweet and talk to her boys in, like, the Miss Rachel voice. But I'm also like, what if my son was over there and my husband, and then I'm here with my little girl losing her legs? And then I'm thinking about the boys, and I was asking if there's any way they can come here. And this wonderful woman was saying, because I was asking kind of her to, she was translating, and I said, is there any way for them to come here? And she was saying no. And she was saying they don't eat anymore on FaceTime with them. Sorry. No, it's a horrific situation. And then the translator, I remembered she had said, like, thank you for seeing our children as human, when I had spoke out before. कहने का मतलब ये है कि ये जो इंसान है मिस रेचल, इतना फेमस होने के बावजूद शी इज स्टैंडिंग अप फॉर गाजा, नॉट फॉर एनी रिलीजियस पर्पस, नॉट फॉर एनी फेथ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सम सॉर्ट ऑफ रिलीजन या कोई, नथिंग। शी इज स्टैंडिंग अप फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, शी इज स्टैंडिंग अप फॉर द सेक ऑफ चिल्ड्रन, बेबीज, women, innocent people. She is literally risking her profession. She is risking her profession by standing up for Palestine. और मैं risking her profession क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिनाइल में हैं, जो मानना नहीं चाहते, जो रिफ्यूज करना चाहते कि तुम क्यों सपोर्ट करना चाह रहे हो, क्यों इनको सपोर्ट करना चाह रहे हो। मे बी बाय द बेसिस ऑफ रिलीजन, मोस्टली यही हो सकता है। बट मिस रेचल ने अपने पूरी
लोग ऐसा सोचते हैं, पीपल थिंक दैट इफ यू स्टैंड अप फॉर गाजा, इफ यू स्टैंड अप फॉर पैलेस्टाइन, यू आर रिस्किंग योर प्रोफेशन इन टर्म्स ऑफ तुम कोई भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, तुम अपने प्रोफेशन को रिस्क कर रहे हो. दिस इज रॉन्ग. इनफैक्ट उनके जितने भी फॉलोअर्स है, जितने भी सब्सक्राइबर्स है, वो डबल हो गए हैं सिंस शी स्टार्टेड सपोर्टिंग गाजा. मतलब शी स्टूड फॉर ह्यूमैनिटी. उन्होंने प्रूव किया है कि वो जो काम करती है बच्चों के रिलेटेड, एज एन एजुकेटर, एज अ बिजनेस वूमन, लव फॉर चिल्ड्रन, शी प्रूव्ड इट कि देखो, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? शी प्रूव्ड इट कि वो जो प्रोफेशन में जो काम कर रही है, वो जो लव फॉर चिल्ड्रन, वो दिल से है, वो मानती है कि ये गलत है अपने प्रोफेशन के हिसाब से. इसलिए शी स्टूड अप विदाउट इवन थिंकिंग एनीथिंग कि मेरा प्रोफेशन भाड़ में गया. आई एम स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट्स रॉन्ग, राइट? सो when you compare this scene, when you compare this whole scenario with the other people who are involved with, for example, some celebrities, okay, who make big speeches, who make big, they are in ambassadors of child care center, या वो लोग कोई चैरिटेबल ग्रुप में है, या कोई भी टाइप की जो चैरिटी में इन्वॉल्व है, ये जो सेलिब्रिटीज है, यहां से पता चलता है कि दिस इज जस्ट, दे आर इन्वॉल्व इन दिस थ्रू बिजनेस. सिर्फ ये लोग, ये जो चैरिटेबल है, ये जो बच्चों का सेंटर्स है, ये जो ऑर्फनेज है, पोवर्टी है, जो भी है, या हेल्प सेंटर्स है, विच दे आर गिविंग फॉर दिस सेंटर्स, ये जो सेलिब्रिटीज है जो देते हैं इन सेंटर्स को, ये सिर्फ बिजनेस के तौर पे देते हैं. मतलब इट्स, अगर सच्ची में दे वर इन्वॉल्व इन दिस चैरिटेबल एक्ट, या हेल्प सेंटर्स, या पुअर किड्स, या मर्डर ऑफ चिल्ड्रेन, या कोई भी हो, तो एटलीस्ट समवन विल स्टैंड अप, एक दो वर्ड तो बोलेंगे. नॉट बिकॉज ऑफ अ रिलीजन मैटर या कोई ऐसा, नो. कम से कम वो लोग खड़े तो होंगे, वो लोग बात करेंगे इस चीज के ऊपर, एटलीस्ट एक दो लाइन. दे आर जस्ट डिसअपियर्ड. नो वन इज टॉकिंग एनीथिंग अबाउट इट. यही बात हो गई ना कि हम अपना, मतलब अगर किसी को बात भी करनी इस चीज के ऊपर, वो लोग बात नहीं करेंगे, बिकॉज इट विल अफेक्ट देयर करियर, इट विल अफेक्ट देयर प्रोफेशन. What is the use of being in your profession when you are afraid to speak about the truth, when you are afraid to stand up? And I'm not saying stand up ki wahan pe jao war karna chalu karo. No, you are in the entertainment industry, you are in the big screen, as an entertainer, as a follower, as an influencer. So as a celebrity influencer, as an actor, आपका ये काम होता है कि बिकॉज क्या फायदा ऐसा करियर का जब यू जस्ट वांट टू स्टैंड अप फॉर समथिंग दैट इज कनेक्टेड टू द वेस्ट. अगर यही वॉर किधर दूसरी जगह पे हो रहा है, जैसे कि यूक्रेन को लो, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा ने कितना फटाफट से बड़ उन्होंने चालू किया, स्टैंड अप लिया कि ओ दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट सपोज टू बी डन, दिस इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेड, there should be an act taken. Itna, she took a stand for this. Why? Because it is involved in something that is with the West. Yeah, something like that. Abhi, jo Gaza mein ho raha hai, she didn't even take a word. Ye video dekho. World leaders, this is a direct appeal to you. We need you to answer the call from activists and advocates working to support the humanitarian and refugee crisis that we are watching unfold every day in Eastern Europe. We need you to take immediate action to help displaced people from Ukraine and all around the world. To give you context, in total, 2 million children have been forced to leave everything behind in search of safety in neighboring countries. Together with the 2.5 million children internally displaced inside Ukraine. देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मुसलमान हैं वो हमें पता है कि जो गाजा पैलेस्टाइन में हो रहा है वो तो होना ही था.
वो तो होना ही है। तो लेकिन हमें ये बात भी पता है कि इस चीज का एक बराबर एंड होने वाला है, लेकिन अभी नहीं, इसका टाइम आएगा। अभी इसका एंड, हमें ये भी पता है कि इस चीज का एक एंड आएगा और इतना बुरा एंड आएगा। कहने का सिर्फ ये मतलब है कि अगर तुम एक बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर हो या सेलिब्रिटी हो या कोई भी रिच पर्सन हो, तो यू डोंट हैव टू स्टैंड और सपोर्ट रिलीजन, ओके? यू डोंट नीड टू सपोर्ट एनी रिलीजन, एटलीस्ट सपोर्ट ह्यूमैनिटी, द सफरिंग ऑफ, जिस तरह मिस रेचल कर रही है। हैट्स ऑफ टू हर, एंड शी हैज हेल्प्ड अ लॉट, बाय द वे शी हैज हेल्प्ड अ लॉट ऑफ किड्स। उन्होंने बहुत सारे बच्चों की हेल्प की है गाजा में, और कई सारी फंड्स भी प्रोवाइड की है। सो हैट्स ऑफ टू हर, अल्लाह उसको हर खुशी दे, और उनका जो बिजनेस है, उनका जो ग्रुप है, वो इंशाल्लाह और बढ़े। वीडियो अगर मुफीद लगे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। यरहर मुकल्ला।